सो ये समझ में आया था आपको कि लोएस्ट टेम्परेचर वहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट बर्न कर रहा है उसका मतलब इनिशियल टेम्परेचर बोल रहे हैं। पेट्रोल एलपीजी हाइड्रोजन का लो ignition temperature है, that means it will burn very easily, that means it will burn very easily. So requirements of combustion, देखिए फ्यूल भी चाहिए, फ्यूल मतलब कॉम्बस्टिबल सब्सटेंसेस, पहले ही बोल दिया था कि सब्सटेंस ही नहीं होगा, सब्सटेंस ही नहीं होगा तो क्या बर्न करेगा, सब्सटेंस नहीं होगा तो क्या बर्न करेगा, anything will burn, nothing will burn. So substance is necessary, oxygen is necessary, that is the air. क्योंकि कॉम्बसन का डेफिनेशन ही वही, कॉम्बसन वही होता है कि जहां पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। और थर्ड इज द हीट इज नेसेसरी, इग्निशन टेम्परेचर लोएस्ट टेम्परेचर इज नेसेसरी। ना अगर गलती से आपका फायर लग गया तो हाउ टू कंट्रोल फायर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर डेली लाइफ सिचुएशंस। लाइक when a gas stove is switched off, it cuts off the supply of fuel. देखिए फ्यूल यहाँ पर क्या है, अगर देख लीजिए यहाँ पर एलपीजी आपका फ्यूल है, आपका गैस स्टोव के केस में आपका एलपीजी फ्यूल है। सो जब आपका गैस स्टोव आप यू आर स्विचिंग ऑफ, फ्यूल इज नॉट देयर, दैट्स व्हाई एनी फ्लेम यू कैन सी आफ्टर it is switching off, after you are switching off, fuel is not coming out, fuel is not coming out, that means fuel is not there actually, fully stored but is not coming out means it's naturally not in the environment. Then the flame is coming, or yes or no? No, right? No, right? That means LPG, when we are cutting, the flame is also cutting, means fuel is a necessary part. Now when the blanket is wrapped, it cuts the supply of oxygen, it's cut the supply of oxygen, correct or not? So like that the fire can be stopped because oxygen आएगा तो more combustion होगा, supply of oxygen should be cut. Sand is useful in extinguishing at least cut the supply of oxygen. I hope it is clear. देखियो three things necessary होता है, first is combustible substance, second is the air, that is the oxygen, and third is the heat. अब इनमें से कोई एक अगर रिमूव कर दिया जाए तो फायर कैन बी कंट्रोल्ड। से पहले पहले किसने क्या किया, फ्यूल हमने खत्म कर दिया, फ्यूल खत्म हो गया मतलब फ्लेम विल बी नॉट देयर। ब्लैंकेट को हम लोग रैप कर दिया, जब कोई इंसान के ऊपर फायर लग गया वो क्या किया, ऑक्सीजन विल नॉट रीच ऑन दैट पर्सन, ऑक्सीजन इज नॉट रीचिंग ऑन दैट पर्सन, thus fire will be not there. Sand, like fire is there, when we are putting sand, oxygen is not able to reach the fire, that's why the flame is stopping. Now same way carbon dioxide, foam, carbon dioxide is there, okay, it is occupying the space and it is not allowing oxygen to enter. Also foam is forming a layer that is also not letting enter the oxygen, ठीक है, तो दैट्स वाई द फ्यूल is going up. Let's see how a extinguisher work. यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड होता है, यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो जाता है, ठीक है। नाउ दिस आर स्प्रेड,
right? You can understand here is sodium bicarbonate. These are reacting to form carbon dioxide, right? These two are reacting, and here we are getting the carbon dioxide that is thrown out. And same way heat को अगर reduce किया जाए, water फेंक देंगे तो क्या होगा? Heat reduce हो जाएगा. That means fire can be controlled, right? Now three types of combustion is there. Rapid combustion. I hope this part is clear. First tell me this part is clear too. Why I am telling this? Because देखो three things होता है. Combustible substance, एयर, और होता है हीट. कोई एक को हम लोग रिमूव कर दे तो नहीं होगा. जैसे फ्यूल को ही हम लोग बंद कर दे तो नहीं होगा. एयर, सैंड हो सकता है, एक्सटिंग्विशर हो सकता है, ब्लैंकेट हो सकता है, हीट को वाटर हो सकता है. सी हाउ यू आर एक्सटिंग्विशिंग द फायर. क्लियर. चलो, let's move to the types of combustion. The three types of combustion, that is rapid, spontaneous, and explosion or explosive combustion. Rapid combustion, when a substance is burned rapidly producing heat and light when ignited by an कैसे 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 आप देखोगे. Like LPG burner, you all have in your home. बाहर से आपको हीट देना पड़ रहा है, करेक्ट. बा इग्नाइट कर रहे हैं हम लोग. इग्नाइट मतलब हम लोग हीट दे रहे हैं बाहर लाइटर से, राइट. लाइटर से हम लोग हीट दे रहे हैं. स्पार्क से वो क्या कर रहा है? हीट जनरेट कर रहा है. कहाँ से? एक्सटर्नल सोर्स से, बाहर से. एक्सटर्नल मतलब बाहर से उसको इग्नाइट किया जा रहा है, इससे वो बर्न हो रहा है रैपिडली. तो ये रैपिड कॉम्बसन हो रहा है. और स्पॉन्टेनियस will burn without an external ignition source. फॉस्फोरस अगर देखो, फॉस्फोरस रखो ऑक्सीजन में, ये फॉस्फोरिक पेंटॉक्साइड फॉर्म करके दैट्स विगरसली रिएक्ट करेगा. विगरसली. नथिंग इज रिक्वायर्ड. नथिंग इज रिक्वायर्ड. एक्सटर्नल सोर्स से हमें इग्निशन नहीं देना है उसको. रैपिड में क्या कर रहे थे? हम लोग इग्निशन दे रहे थे. ignition we are giving, but here in spontaneous we are not giving any external from external anything. And explosion में क्या होता है? large amount of heat, light, sound का प्रोड्यूस होता है. large amount में का heat, light, sound का प्रोड्यूस होता है. जैसे आप अगर आप देखोगे, पहले पिक्चर में हम लोग दिए थे, ये देखिए. अगर फ्राई फ्राई करके सुनोगे तो लाइट का है, हीट का भी जनरेट होता है, और साउंड का भी जनरेट होता है. सो दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ एक्सप्लोसिव कॉम्बसन. समझ में आया? रैपिड, थ्री टाइप्स ऑफ कॉम्बसन, वेरी इजी गाइस. हाँ, न्यू टॉपिक तो हम लोग सिखाएंगे, उसके लिए तो आए हैं. थ्री टाइप्स अगेन डिस्कस कर देते हैं. रैपिड, स्पॉन्टेनियस एंड एक्सप्लोजन. स्पॉन्टेनियस मतलब विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स. कोई एक्सटर्नल सोर्स का जरूरत नहीं है, और इसका एक एक्सटर्नल सोर्स का जरूरत है. बस इतना ही डिफरेंस है. और एक्सप्लोजन क्या है? साउंड, हीट और लाइट जो प्रोड्यूस का धूम धड़क का जो बोलते हैं, वही हमारा एक्सप्लोजन है. सो थ्री टाइप्स ऑफ कंबस्ट. आई गेस यू हैव अंडरस्टूड. नाउ दे बर्न, फायर में बर्न विथ और विदाउट फ्लेम. अगर आप चारकोल देखोगे, अगर आप लोग ऐसे चारकोल होता है, here any flame is there, it is not burning with a flame, but it is going with combustion. Substance which vaporize during flame, vaporize during burning, produce flame. जैसे यहाँ पर कॉम इस जो चारकोल है वो
वेपोराइज नहीं होता, वो अपने से ही बर्न होता है, एसपी फॉर्म नहीं होता है। वैक्स, वैक्स जब बर्न होता है यहाँ पर वैक्स वेपर रिलीज होता है, दैट्स वाई एक फ्लेम और वैक्स वेपर कार्बन वेपर बर्न होकर वैसे बनाता है। सेम फॉर केरोसिन, केरोसिन बर्न होगा तो कार्बन देगा, वो कार्बन मॉलिक्यूल्स बर्न होकर as charcoal will not vaporize anything and will not produce any flame. Now parts of a flame, flame आप समझ सकते हैं कि क्या फ्लेम है। सो फ्लेम में तीन पार्ट है, द डार्क और द इनर मोस्ट जोन। यहाँ पर अगर देखो आप इनर मोस्ट जोन दैट इज ब्लैक इन कलर, विच कलर, ब्लैक इन कलर गाइस। There is all the unburned carbon, wax, vapor, and it is very much least hot. सबसे जो कम टेम्परेचर है वो अंदर में है। आप सोचते हैं कि अंदर में ज्यादा टेम्परेचर, नो, अंदर में सबसे लीस्ट टेम्परेचर होता है अराउंड 600 डिग्री सेल्सियस, बट इट इज नॉट फॉर अस, राइट। 600 डिग्री सेल्सियस, और वहां पर ही हम लोग अनबर्न्ड कार्बन पाते हैं और वो लीस्ट हॉट जोन होता है। Now, middle zone, luminous zone, that is yellow in color. You can see middle or luminous zone. That partial combustion होता है। यहाँ पर क्या combustion होता है, अनबर्न मस इनकम्प्लीट combustion होता है, लिख लीजिए। और यहाँ पर पार्शियल मतलब इनकम्प्लीट भी नहीं और कंप्लीट भी नहीं, इसलिए पार्शियल होता है। द टेम्परेचर अबाउट 1200 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है और ये मॉडरेटली हॉट होता है, मतलब इससे थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर। और लास्ट द ब्लू ब्लू एरिया, यू कैन सी blue area, this is a non-luminous or outer zone. It have complete combustion, means it is getting the perfect amount of oxygen and this is not getting the perfect amount of oxygen, and this is getting the moderate amount of oxygen. Understood? And it is the hottest zone. So very important, if we see a flame, luminous, the middle zone, you can see this one is a luminous zone, right? This is about 100 200 1200 degrees celsius. Dark zone, that is this black one, that is innermost and 600 degrees celsius, and non-luminous is blue one, that is outermost and 1400 degrees celsius. Now this luminous, non-luminous is of blue color and luminous is of yellow color. Now एक थिंग बता दे, एक थिंग बता दे, ये आपका बुक में नहीं है, ओके, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग। देखिए, एनीथिंग दैट गिव्स येलो फ्लेम, दैट मीन्स येलो फ्लेम कुछ भी दीजिए आप, मैथ्स चला येलो फ्लेम देगा ना, तो वो क्या है, वो इनकम्प्लीट कॉम्बस्शन का एग्जाम्पल है। इनकम्प्लीट या पार्शियल कॉम्बस्शन आप बोल सकते हो, प्लस बट आप आज के लिए आप इनकम्प्लीट ही सुन लीजिए। वो इनकम्प्लीट कॉम्बस्शन का एग्जाम्पल है, किसका, इनकम्प्लीट कॉम्बस्शन। अगर ब्लू आए दैट मीन्स इट्स complete combustion. If it is blue in color, that means it is a complete combustion. Okay, nothing is there, all the fuel is utilized. Now अगर आप एलपीजी गैस स्टोव को देखो, पहले मैंने बोला था वो ब्लू कलर का होता है, पर कैंडल के फ्लेम को देखो वो अगर येलो कलर होता है। मोस्टली ये कंप्लीट कॉम्बस्शन होता है, क्योंकि ये इस एलपीजी का मेन कार्य होता है कुकिंग फूड एंड गिविंग यूजिंग for industrial and domestic purposes. So for that we does not need light, we need most heat energy. इसलिए यहाँ पर ब्लू फ्लेम दे रहा है क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट कॉम्बसन हो रहा है, कंप्लीट कॉम्बसन के लिए एकदम परफेक्ट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हो रहा है, और लुमिनस जोन नहीं है इसलिए येलो जोन नहीं है, ज्यादा लाइट नहीं दे रहे वो। पर अगर लाइट के लिए हम लोग कैंडल क्यों यूज करते हैं, कि वो इनकम्प्लीट कम्बसन करते हैं और वो येलो लाइट देते हैं।
जो कि ब्राइट होता है, पर ब्लू तो ब्राइट नहीं होता है। वो भी लाइट देता है पर ब्लू तो ब्राइट नहीं होता है। और वे कॉम्प्लीट कंबसन है, इसलिए ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, इसलिए ये इंडस्ट्रियल पर्पस में और ये लाइट देने के लिए पर्पस में यूज होता है। और ऐसे ही सोर्स जो बर्न होके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं फ्यूल। मीन्स वे खुद बर्न हो रहे हैं, बर्न होके क्या दे रहे हैं, एनर्जी, दैट कैन बी हीट एनर्जी या लाइट एनर्जी। Ideal fuel should be economical. Economical means it should be of the good cost. It should be not so cheap, not so high, moderate. And quality also. High calorific value, no undesirable residue easily. Now देखो अगर residue form होगा, if the residue is forming, that means the full energy is not utilized. If residue is forming, the full utilization is not utilized. LPG में कोई residue होता है, इसलिए that's why full energy is utilized. That's why undesirable residue नहीं चाहिए हमें, और वो इजीली अवेलेबल हो। खोद रहा है नहीं मिल रहा है, वैसा नहीं होना चाहिए। हाई कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, कैलोरीफिक वैल्यू मीन्स द अमाउंट ऑफ हीट इट विल प्रोड्यूस इन एनर्जी। 1 kg मास में कितना एनर्जी वे रिलीज कर रहा है, वही एक कैलोरीफिक वैल्यू। देखिए, ओके दिस यू अंडरस्टैंड राइट। नाउ एक ऑब्जेक्ट जैसे हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू है हाइड्रोजन गैस का। उसके बाद एलपीजी, उसके बाद क्या है, काउडंग। काउडंग को यूज करता है, नहीं यूज करते, ये दोनों यूज होता है। ये तो हम लोग घर में नहीं यूज करते, पर ये स्पेसशिप, स्पेस क्राफ्ट जो ज्यादा ज्यादा फ्यूल लगेगा उसमें भी यूज होता है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गोल्ड स्मिथ्स यूज करते हैं, राइट। दिस हाइड्रोजन वाई इट इज यूज बिकॉज इट इज अ हाई कैलोरीफिक वैल्यू, ज्यादा हीट एनर्जी रिलीज करेगा, ज्यादा हीट एनर्जी रिलीज करेगा मतलब ज्यादा एनर्जी हमें मिलेगा और वो यूटिलाइजेशन ज्यादा होगा। तो आइडियल फ्यूल वैसा ही होना चाहिए जो चीप भी होना चाहिए, क्वालिटी भी अच्छा होना चाहिए, हाई कैलोरीफिक वैल्यू होना चाहिए और रेसिड्यू नहीं होना चाहिए। और इसका एक फॉर्मूला होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है, इसका यूनिट होता है किलो जूल्स पर केजी। जूल्स यूज नो, दैट इज यूज फॉर हीट और ओके। Now, for your extra information, 1 calorie equal to 4.18 joule। याद रखना ये, अगर ये आ गया कैलोरी में तो ये कन्वर्ट कर देना, ओके। नाउ उसका क्या होता है अमाउंट, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, कैलोरीफिक वैल्यू का फॉर्मूला होता है, बोलिए क्या बोला मैंने, अमाउंट ऑफ हीट मीन्स अमाउंट ऑफ हीट बाई क्या होगा, अमाउंट ऑफ फ्यूल यूज। यस, 1 kg ऑफ फ्यूल बोला है ना, दैट्स वाई ये जूल पर ग्राम में दिया गया है। तो आपको किलो जूल करने के लिए क्या है, देखो अगर जूल पर ग्राम में दिया गया है तो 1000 के मल्टीप्लाई करने से किलोग्राम, 1000 से मल्टीप्लाई करके किलो जूल करना होगा। 5 kg of coal liberates 10,000 kilojoules of heat, फाइंड इट्स कैलोरी टोटल, ये मास होते 5 kg। देखो हम लोग लिखेंगे क्या, 10,000 बाई 5, 5 टू आंसर विल बी 2000। k will be small letter, j will be big letter, by kg both small। Now this combustion will cause respiratory diseases like asthma, it will cause global warming, ग्रीन हाउस गैस CO2, मीथेन CH4, उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ जाएगा और ये हीट को ट्रैप कर लेगा और हमारा अर्थ हीटेड हो आप हो जाएगा। एसिड रेन, टॉक्सिक गैसेस लाइक, इसलिए हम लोग ताजमहल का केरला पेल येलो हो जा रहा है, राइट। सो नाइट्रोजन उठ रहा है, वो उठकर नाइट्रिक एसिड बना रहा है,
कि जब हम लोग यहाँ पर जा रहा है, नाइट्रोजन रिलीज हो रहा है कार के साथ, वे नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जा रहा है। ये नाइट्रोजन ऑक्साइड जब वाटर के प्रेजेंस में आ रहा है, ये HNO3 हो जा रहा है, ऑक्सीजन भी है, HNO3 हो जा रहा है, और ये हमारे अर्थ में गिर रहा है। सेम वे जब सल्फर जा रहा है, सल्फर कंपाउंड जा रहा है, वो सल्फ्यूरिक एसिड बना रहा है। So this nitric acid, sulfuric acid are very harmful for us. So, so three things adverse effects we have learned: either respiratory diseases, either global warming, or either acid rain it can cause. So so that's all for the chapter. Chapter completed, guys. Just revise if you don't understand. See 5 to 10 times. You will be surely understanding as I have explained. Very good. Now your responsibility to do the homework to see it 5 and 10 times. Till then, take care. Bye bye. Goodbye. Good night. Peace off.